we'll have a little shorter class by 8:20, 8:25, 8:30. I have other meetings. So बाकी लोगों को वीडियो से कैचअप करना पड़ेगा. Those who are missing. क्या क्या किया था आयुष हमने? You attended ना last previous few classes. फिर क्या फायदा अटेंड करने का? पहला कॉमन फोर्स किया था हमने वेट. Second was normal reaction. Ishan, what is normal reaction? Two surfaces in contact does not just the condition, it has to be little more. Contact does not guarantee there will be normal reaction. They have to be pressing each other. Two surfaces pressing each other. That's normal reaction. Okay. Then third we did tension. Rishi, tension तो पढ़ा था last class. Tension is string. Okay. What's the tension force? Can you explain? अपने शब्दों में कोई बात नहीं. In your what is the tension force? स्ट्रिंग पे जो लगती है. ओके. कब लगती है? when string is pulled. स्ट्रिंग पे लगती है और स्ट्रिंग भी लगाती है. टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय अ स्ट्रिंग ऑलवेज टुवर्ड्स इटसेल्फ. किसी भी बॉडी को स्ट्रिंग से कनेक्ट करके इफ यू पुल then a string pulls always towards itself. That force is called tension force. The property of ideal string is that massless and inextensible. massless है इसलिए net force 0 होना चाहिए. net force 0 होना चाहिए इसीलिए string के हर एक point का tension same as long as it is ideal and massless. Non-ideal string will have some mass, will have some different tension at different point. Okay. And then we did one last concept of pulley, ideal pulley. Ideal pulley is frictionless at the axle and massless because it's supported. Ideal pulley is massless, इसलिए इसके ऊपर भी net force 0 होना चाहिए and inextensible string इसके ऊपर अगर पास होती है. So we did one last class Atwood's machine. एक बार उसको quickly revise कर लेते हैं because other result will also be related. A single pulley, ideal string, two blocks connected together with the ideal string M2 and M1. ऋषि, इसमें कौन-कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ओ, वो वाला पहले वाला बेटर था. One second. जस्ट सेकंड बेटा, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा स्टैंड. थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ऑफलाइन वाला. अच्छा भी ठीक है, दिख रहा है. सो ऋषि में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं याद है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. टेंशन लग रहा है, रस्सी हमेशा अपनी तरफ खींचती है. M2 को ऊपर, M1 को ऊपर,
ये दोनों पुलिस को नीचे की तरफ टी एंड टी, और ऊपर टूटी लग रही है। ऊपर टूटी लग रही होगी। क्यों टूटी? बिकॉज ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली में टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। टोटल फोर्स 0 तभी होगा व्हेन दिस इज सेम टी एंड टी, एंड और भी तो फोर्सेस है। नीचे एम जी लग रहा है, यस, M2G एंड M1G दोनों का। दिस इज दी FBD और BD बॉडी डायग्राम। एक नीचे जा रहा होगा जो हैवी है, और जो रिलेटिवली लेस मास है वो ऊपर जाएगा। दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय आइडियल स्ट्रिंग, देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल एंड अपोजिट। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये नीचे जा रहा है, इसलिए इसका M2G बड़ा होना चाहिए T से। गोइंग डाउन, M2G has to be greater than T, then only it will go down. The other one, T has to be greater than M1G. T minus M1G should be equal to M1A. Add the two, we get acceleration. ठीक है, क्या था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद कर शायद देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देख लो, कोई बात नहीं। दिस इज अ स्टैंडर्ड वन। व्हेन यू डू दिस एडिशन ऑफ दोस टू इक्वेशन, M2 minus M1 divided by M2 plus M1G, this is the same acceleration। M2 नीचे की तरफ, M1 ऊपर की तरफ, they both are moving with the same acceleration। Are they moving with same acceleration? Is this statement correct? They are moving with same acceleration। एक opposite है। So if this statement assertion reason they are moving with the same acceleration, no, they have same magnitude of acceleration। In exam like JEE ऐसे खेलते हैं वो थोड़ा, to the concept, right? They do not have same acceleration, they have same magnitude of acceleration। acceleration एक अगर प्लस a है तो दूसरे का माइनस a, right? What is the tension in this string? वो भी कैलकुलेट किया था हमने। So अगर आप ये रिजल्ट याद कर लोगे तो अच्छा है, because it is quite useful in the complicated ones। 2M1 M2 divided by M1 plus M2G, ये दो रिजल्ट हम लास्ट क्लास में प्रूव कर चुके हैं। With the help of these two equation of motion, we can find acceleration and we can find tension। Correct? Now the next scenario is, कैसे एक और हमने शॉर्टकट कुछ मेथड किया था, याद है किसी को? What was that shortcut? So we did a shortcut that consider this whole as a system। बाकी T cancel, both string tension cancel, ये cancel बचा केवल M2G और M1G, and then we have to see which one is greater and which one pulls on the other side। जो बड़ा होगा वो दूसरी तरफ के फोर्स को अपने साइड पुल कर लेगा। So M2G is one side pulling force, M1G is on the other side। क्यों कर रहे हैं उसको? तो इसने बांध रखा है ना, that is part of the roof। वो तो ऊपर टूटी से बैलेंस हो जाएगा। वो टूटी किसने लगाया? उसने, इसके सपोर्ट ने लगाया। हाँ, उतना ही इसके ऊपर भी लग रहा होगा। नहीं नहीं, जैसे इस पे M2G लग रहा है, अब अर्थ को भी इसके अंदर कर लो तो M2G भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जितना ये मूव कर रहा है उतना अर्थ भी मूव कर रही है। कैंसिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अलग अलग सिस्टम में दोनों को लोगे तब ना। If both the bodies are in the system, जैसे इसमें ये सिस्टम नहीं है, इसलिए क्या सिस्टम में स्ट्रिंग और पुली, इसलिए so T is equal to 2M1 M2 upon M1 plus M2G। और इसका जो शॉर्टकट मेथड था वो पूरे सिस्टम को तुम इसको ले सकते हो यार, सिस्टम कुछ लो, ये कहना चाह रहे थे ना। अब ये टूटी ऊपर लगा, ऐसे नीचे भी टूटी होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस टी ने इसको कैंसिल किया, इस टी ने इसको कैंसिल किया, ये टूटी को इधर टूटी ने कैंसिल किया। ऑलवेज यू कंसीडर द पेयर इन द सिस्टम। बचेगा M2G और M1G, जो भी बड़ा होगा वो दूसरे वाले को अपने साइड पुल कर लेगा बाय ए रिजल्टेंट नेट पुलिंग फोर्स ऑफ M2G minus M1G। सो शॉर्टकट बिकॉज अभी MCQ है तो हम ये शॉर्टकट वाला मेथड ज्यादा प्रेफर करेंगे टू सेव टाइम।
and then we will find acceleration, and then we calculate tension. So based on this pulley with ideal string connected with two masses, those type of questions we will do today. और कोई जल्दी नहीं है बिकॉज टॉपिक थ्योरेटिकली हम पढ़ चुके हैं सीबीएसई क्लास में ऑलरेडी. स्कूल के लिए जितना कंटेंट था तो अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस टाइप करनी है. हर एक क्वेश्चन में एफबीडी बनाना खुद अपने आप. आई विल हेल्प, क्योंकि ये देख के नहीं आता है. ये चैप्टर सबसे खतरनाक है और ये फिजिक्स का. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. ये किया था हमने लास्ट क्लास, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा कुछ. नो, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. उसके टॉप पे एक पुल लगी हुई है. क्या था ये? नहीं. वन साइड विद a string a block of m2 is hanging and on the other side m1 is kept. और ये सब ऐसे लरोड़ा में भी है इस टाइप के, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है. बहुत खतरनाक सा कुछ पढ़ रहे हैं ऊपर का. m2 and m1, all surfaces are perfectly smooth. एग्जाम्पल नंबर 2 या जो भी लिख रहे हो. क्वेश्चन क्या है? हमें एक्सेलेरेशन निकालना है और इसकी स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है. Calculate the acceleration of each block and calculate the tension in the string. These are the two questions. Example number 2 maybe. And you have to use the shortcut approach. Quick. Left side में m2g, नीचे. What is the force that is pulling the string on the other side? It is m1g. Is it m1g? m1g तो नहीं पुल कर रहा है स्ट्रिंग को. स्ट्रिंग को तो जो पुल करेगा वो स्ट्रिंग के along ही होगा. And that will be one component of m1g. This is component of a vector. पता है? तो एक थोड़ा सा बस शॉर्टकट में आइडिया दे देते हैं. नहीं फिर अगर ये दिस इज अ वेक्टर, हम इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं. रिजॉल्व करने का मतलब है इसको दो ऐसे वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, वेक्टर p और q, तो फिर से a मिल जाएगा. Either you apply one vector a or you apply two perpendicular vectors p and q. So ये p इधर इतना q होगा, ये this p and q. ये बेस के साथ एंगल थीटा है. a is the length of hypotenuse. So what will be the length of base? Base upon hypotenuse is cos theta. Base will become a cos theta. Perpendicular upon hypotenuse is sin theta. So perpendicular becomes sin. तो अभी हम किसी वेक्टर को ब्रेक करते हैं. One vector is can be resolved into its two perpendicular component. एक हो जाता है a cos theta और दूसरा हो जाता है a sin theta. जिस तरफ एंगल होगा उस साइड cos और उसके परपेंडिकुलर वाला sin. This is called resolution of a vector. एक वेक्टर को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना. फिर सो ऐसे हम ये m1g को डिवाइड कर लेते हैं. Resolve this m1g into the two perpendicular components. तो ये थीटा है, इधर थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा. दिस बिकम थीटा. जिस साइड पे थीटा होता है एंगल, उधर का कंपोनेंट cos. सो प्लेन के परपेंडिकुलर m1g cos थीटा, प्लेन के अलोंग m1g sin थीटा. और बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, बट हम इंटरेस्टेड थे केवल उस फोर्स में जो कि स्ट्रिंग को पुल कर रहा है. निशान, व्हाट इज द नेट फोर्स दैट पुल्स द स्ट्रिंग? नेट, वो तो एक तरफ है, दूसरी तरफ भी तो कोई खींच रहा है. व्हाट इज द पुलिंग फोर्स ऑन द अदर साइड? m2g. सो नेट फोर्स कितना हुआ? अगर m2g बड़ा है तो एक तरफ m2g अपनी साइड खींच रहा है, दूसरी तरफ m1g sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास. Net pulling force is m2g minus m1g sin theta. ये वो जादू वाला तरीका, मतलब शॉर्टकट वाला मेथड है. एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक. कुछ नहीं करना है, केवल रस्सी के दोनों एंड पे खड़े होकर देखना है कौन से फोर्स पुल कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट. वन साइड m2g, अदर साइड m1g sin theta. m2g minus m1g sin theta by m2 plus m1. तो मास टू को बोल नहीं कर सकता. मास टू मास वन है, मास टू को कोई नहीं कर सकता.
वो कैसे पुल करेगा, तो रस्सी करेगी ना। अच्छा नीचे, हाँ वो आ सकता है, वो शायद लास्ट क्लास में मैंने लिखा होगा, दिस इज ऑलरेडी गिवन दैट m2 इज ग्रेटर देन m1 sin थीटा, नहीं तो उसकी वैल्यू से आप निकाल के चेक करोगे, अगर m1 हैवी होगा तो वो भी कर सकता है, m1 sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन m2 जी। ये भी इक्वेशन गलत नहीं है, अगर वैसा होगा तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स so even if you don't consider कि कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, राइट इक्वेशन इट शुड बी मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन कि एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर ही जाना चाहिए, then you will get negative answer if it is opposite to the actual motion, right? So इक्वेशन भी बना सकते थे इसकी, अब हमें टेंशन के लिए इक्वेशन चाहिए होगी, m2 minus m1g sin थीटा डिवाइडेड बाय m2 plus m1, ये आ गया एक्सेलरेशन। m2 इतने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि m2 बड़ा था m1g sin थीटा से, m1 is going up the plane। इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? Heath, what is the equation of these two blocks separate? जी ने लिखा m2 minus, अच्छा अंदर m1 sin theta into g, m2g minus p is equal to m2a, right? And equation for m1, ऐसा क्यों लिखेगा? सीधे देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर ले जाने के लिए ऊपर वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, out of t and m1g sin theta which has to be greater, इसीलिए कह रहा हूँ सीधे करो ना, क्यों कान घुमा के पकड़ना है क्या? अब वो मैंने सुन लिया था, इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे क्यों लिखना है, दैट वाज माय रिप्लाई। सीधे पकड़ो, ज्यादा इजी है, घुमा के थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बच जाता है। वेरी सिंपल, इट्स गोइंग डाउन, m2g बड़ा है, इट्स गोइंग अप, कॉमन सेंस p हैज टू बी ग्रेटर, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन p minus m1g sin theta is equal to m1a, ऐड दी टू इक्वेशन, फिर रिजल्ट मिल जाएगा। ये ज्यादा इजी है फील करना, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा होना चाहिए। Now from this acceleration we have to calculate tension, tension calculate करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 to find the tension in the string। इक्वेशन हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, नहीं करते तो इन दोनों को लिख के, if you add these two equation which is a little lengthy way but it's correct always, so टिकट हो जाएगा, वही आ जाएगा जो ऊपर है, ये तो थोड़ा शॉर्टकट से निकाल लिया था, ये सही तरीका है। एक्चुअल मेथड इज दिस, राइट द इक्वेशन फॉर द टू ब्लॉक्स और दोनों को ऐड कर लो, और से एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को वापस किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इफ यू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, so m2g minus t is equal to m2a, t will become m2 times g minus a। A here is m2 minus m1 sin theta divided by m2 plus m1 times g. Take the LCM and solve. Okay, now another question for a J level, 1 level high. What is the force on the pulley? What is the net force on the pulley here? पुली तो फिक्स है, पुली कहीं उखड़ के जा ही नहीं रही। Force on the pulley by the wedge, net force तो जीरो ही होगा यार, वो तो obvious सी बात है। Net is zero. Force on the pulley by the string or force on the pulley by the wedge or force on the hinge. Force, find the force on the hinge. ये यहाँ पे कितना force लग रहा है? Find the force on the pulley by the wedge.
दोनों का सिस्टम में ले लोगे पुली और वेज को तो जीरो हो गया. इट हैज टू बी जीरो बिकॉज इट इज अ आइडियल पुली. थोड़ा ना थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, सिलेबस खत्म करने के लिए नहीं, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा. ट्राई. क्वेश्चन क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाले एग्जांपल में क्या था? इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग? 2t. t प्लस t नीचे था और उतना इस हिंज ने सपोर्ट ने ऊपर लगा के बैलेंस कर लिया था. दिस वाज व्हाई पुली वाज स्टेशनरी, पुली वाज इन इक्विलिब्रियम. सेम लॉजिक हियर, सेम लॉजिक हियर. इस एंड पे पुली को नीचे की तरफ फोर्स लगाया t. This is the force applied by string on the pulley. This is the force applied by. So if we draw the BD of this pulley, either T, either T. In the, this resultant is not 2T by the way because they are not in the same direction. कितना एंगल है दोनों के बीच में? What is this angle? 90 minus theta. 90 minus theta. दो फोर्स लग रहे, इन दोनों का जितना रिजल्टेंट है उतना ही हिंज ने ऊपर लगाया होगा. On this hinge, how much is the force acting? The force which is resultant of this T and T and angle between them is 90 minus theta. दो forces के resultant का कुछ formula होता है. ठीक है? What is the formula for resultant of two forces having angle theta in between? Resultant of two vectors. दो वेक्टर A और B बीच में एंगल थीटा, उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला. तो पढ़ाई में वेक्टर. आयुष, ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना डिफरेंस मत क्रिएट करो यार कि ऑनलाइन से भरोसा उठ जाए. ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जब एंगल होता था दो वेक्टर्स के बीच में थीटा. यहाँ पर वो एंगल हो गया 90 माइनस थीटा एंड बोथ ऑफ द वेक्टर्स a and b आर t and t. इधर भी रस्सी खींच रही है इसको, नीचे ये ऊपर, ये नीचे खींच रही है, इधर खींच रही है. On this pulley there are two forces, one on the left side of the string, other right side of the string. दोनों का जो resultant आएगा, that resultant is the force applied by the string on the pulley, उतना ही force by the wedge on the pulley, so that it will come in equilibrium. This force is root a square plus b square, t square plus t square, और t हम पहले निकाल चुके हैं इसलिए don't have to worry, plus 2ab cos theta, theta is 90 minus theta. This is force on the pulley. तो किसने पूछा? Force on the pulley by the string नीचे, force on the pulley by the wedge ऊपर. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इसीलिए कैंसिल आउट हो रहे हैं. ओके, थर्ड केस ये आगे सॉल्व मत करना, मतलब ठीक है. टी का कुछ खतरनाक सा फॉर्मूला था m2 minus m1g sin थीटा पर इसका स्क्वायर करने लग जाओ. दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. भावनाएं समझनी है, फील करनी है, और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप करना है. चलो, दैट इज द फर्स्ट होमवर्क. All the class examples you have to do it again before coming to next class. Yes, Rishi? ये वाला फॉर्मूला बस एक नया हो गया थोड़ा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है अपने आप. ये सारे अभी सिंगल आइडियल पुली और आइडियल स्प्रिंग कनेक्टेड विद टू ब्लॉक्स वाले केसेस है. दो मासेस हैं जो एक आइडियल स्ट्रिंग से अटैच करके आइडियल पुली के ऊपर से पास होते हैं. You have to find their acceleration and the tension between them.
एक शॉर्टकट मेथड है जो काम आ सकता है टू सेव टाइम, एक लंबा सा मेथड है जिसमें हमें इक्वेशन बना के कैलकुलेट करना होता है. So it is M2 which is vertically downwards hanging, and this is M1 on a horizontal smooth surface. Calculate the acceleration and tension. Same question है सभी में, same thing being asked. Same acceleration or tension. Calculate acceleration of each block and tension in the string. M2 तो नीचे है. अच्छा, M1 उधर वाले साइड पे कोई नहीं खींच रहा होगा. जो तुम कह रहे थे वो सही कह रहे थे, बस थोड़ा और प्रिसाइज कर लो अपने वर्ड्स. वो भरी है या कोई इसके पीछे पीछे है तो कौन? M1 वो रखा हुआ है बस. नहीं सर, मतलब कोई खींच तो नहीं रहा ना. बस यही सिस्टम है, कोई और तो दिख नहीं रहा. दो ब्लॉक है, रख के छोड़ दिया. M2G by M1 plus M2G, right? Right. Correct. Vanshika, what's your answer? स्पीड उड़ा पेन दो, पेन है बहुत सारे. डायग्राम में M2G M1G है नहीं, कुछ हवा बनता जा रहा है तुम्हारा. कहाँ है? Where is your FBD forces? Where is M2G? Where is M1G? ये कहाँ से आया? अरे फोर्सेस ड्रॉ करो यार, M1 M2 से काम नहीं चलता है. तुम स्पीड बढ़ाओ फिर फटाफट. यस, ये M2 है, बाकी ये क्या है? उसका नाम तो लिखो यार. फोर्सेस. ड्रॉ द FBD and draw the FBD. That's अच्छा, क्वेश्चन बना दी. तो तो टेंशन हो तभी तो क्वेश्चन बनेगी यार. टेंशन है ही नहीं, तुम कैसे लिख रहे हो हवा में? You have to first show कि इसमें टेंशन ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कहाँ लग रहा है. क्वेश्चन ऐसे M2G माइनस. यस सर, टेंशन M1 M2G upon M1 plus M2. yes 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 right. These are the two weight जो लग रहा है नीचे. जब तक आपने FBD में फोर्सेस शो नहीं किया, इक्वेशन कैसे लिख सकते? ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ पुल कर रही है T, ये इधर अपनी तरफ पुल कर रही है T. बाकी स्ट्रिंग और इसके ऊपर देखोगे तो ये these are the forces. थीटा कहाँ था? थीटा कहाँ था जो तुमने M1 cos थीटा लिखा? Where is थीटा? What is that थीटा? cos 90 कितना होता है? कितना होता है? 0. Means there is no component. There is no force which is pulling on the other side. एक तरफ M2G खींच रहा है, दूसरी तरफ कोई नहीं है. There is no other force which is pulling. तो अगर शॉर्टकट मेथड लगाओगे तो पुलिंग फोर्स divided by total mass. That's the method. Shortcut form. If you want to write the equation, Ishan Bansal. Ishan M2G minus T. जब आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए उस डायग्राम में कि M2 के अपोजिट में T लग रहा है, जो आपके डायग्राम में नहीं दिख रहा. इसमें 2 लिखा हुआ है, M2 है. वो 1 ही लिखा है यार. ऐसे 1 बनता है मेरी मैथ्स में. तो ये क्या लग रहा है? ये तो 1 किसी एंगल से लग रहा है. दोनों कैसे M2 दिखते हैं? ये 1 है बेटा, ये 1 है.
अब तो ऑफलाइन आ गए हो, ऑनलाइन ज्यादा बेटर विजिबिलिटी होती है शायद। ऑनलाइन में visibility करते ही नहीं था। ऑनलाइन में इसलिए जो था। ओके, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ये लेफ्ट में आ रहा है, इसको और किसी ने खींचा नहीं, केवल एक टेंशन का फोर्स लग रहा है, m1a। माइनस में p माइनस m1 भी यूज होगा। कहाँ है टी को अपोजिट में, कौन लग रहा है इधर, वही लग रहा है। m1g किधर है, परपेंडिकुलर ना उसके। m1g से टेबल दब रही है, m1g से टेबल का सरफेस प्रेस हो रहा है, m1g इज नॉट ऑन दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को पुल करने वाला फोर्स चाहिए, दैट इज ओनली वन साइड m2g। दोनों को ऐड कर लो, ये शॉर्टकट नहीं काम है, कोई बात नहीं, अब लॉन्ग कट ही करो, पहले सारे फोर्सेस ड्रॉ करो, इक्वेशन लिखो, दोनों को ऐड कर दो, टी कौन, m2g इज इक्वल टू m2 प्लस m1 टाइम्स a, यहाँ से a आ जाएगा, उसको वापस सब्स्टिट्यूट करोगे तो t आ जाएगा। विदाउट ड्राइंग द करेक्ट फोर्सेस FBD आपको इक्वेशन नहीं लिखनी, वरना हमेशा गड़बड़ होगा। इसी का क्या समस्या है, मतलब कहाँ पे अटक जाते हो? थोड़ा थीटा जबरदस्ती है। You also didn't draw the forces, पहले इक्वेशन लिखना शुरू कर दिया, ये जब इक्वेशन लिखी तब तक नहीं था। हाँ, पहला स्टेप है फोर्सेस FBD, सेकेंड स्टेप इज राइटिंग द इक्वेशन। पहले इक्वेशन लिखिए फिर फोर्स बना लो डायग्राम। Okay, what is the force on this hinge? Sadhika, what is the force on this hinge? Root 2t. Sadhika, Yes, sir. what is the force here? पुली पे एक t इधर लग रहा है, एक t इधर लग रहा है, बीच में एंगल 90 डिग्री, what is the resultant? T and T at an angle of 90 degree, what is the resultant? दो perpendicular forces का resultant root a square plus b square. So root of t square plus t square, which will become root 2t. रूट 2t इसके ऊपर स्ट्रिंग ने लगाया, इसलिए हिंज को भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट द नेट फोर्स विल बी 0। Right, so this is the case of an ideal pulley, ideal string passing over a pulley connected to two blocks। अब थोड़े से टेढ़े मेढ़े टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, when there is a movable pulley। अभी ये सारे के सारे एग्जांपल थे फिक्स्ड पुली वाले, जिसमें पुली कहीं ना कहीं पे फिक्स्ड है। Now we'll see the movable pulley। System having movable pulley, और movable pulley का मतलब, मूवेबल पुली का मतलब उस पुली में कुछ एक्सेलरेशन होगा। There are two pulleys। ये थोड़ा अच्छे से आंख नाक कान सब खोल के समझना, ये बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। एक रस्सी है बड़ी सी, एक एंड पे ब्लॉक FB, दूसरे पे ए पुली के साथ है, और there are two pulleys, both are ideal। string passing over the pulley, एक साइड पे ब्लॉक M2 है, let's say this is M2, और ये A है M1। Will the acceleration of A and B equal and opposite? दोनों का acceleration equal and opposite होगा, yes or no? होगा? क्यों? लगता तो बहुत कुछ है। Are they attached with the same string? Are they attached with same string? No.
यस कि नो? ए और बी एक स्ट्रिंग से अटैच है कि नहीं है? कहाँ है यार? ये एक अस्सी है, दिस इज वन स्ट्रिंग, ये यहाँ से गई ए के ऊपर, फिर ये इस पुली के ऊपर. The one end of a string is attached to B, the other end of this string is attached to the roof. ये तो गया ही नहीं इस रस्सी में, right? A's and B are not attached to the same string. वो string तो यहाँ से इधर, that's it, gone. A is attached with this small string जो नीचे छोटी सी है. तो अभी इसमें वो वाला फंडा फेल हो जाएगा कि दोनों सेम स्ट्रिंग्स हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. They will not be moving with same acceleration anymore. साथ में नहीं चलेंगे, इतना क्लियर है, क्योंकि दोनों की अभी अलग अलग स्ट्रिंग्स है. एक एक्सेलरेशन ले लेते हैं, ये सपोज A1 से अभी नीचे जा रहा है और ये A2 से. अब हमें इनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है, वो पहला स्टेप होता है. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, फर्स्ट स्टेप इज पुली कंस्ट्रेंट. हमने एक पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, कभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, किसी भी रस्सी के दोनों एंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. नाउ इट इज अ पुली कंस्ट्रेंट. पुली के ऊपर से जब भी कोई मासेस जा रहे हैं या स्ट्रिंग जा रही है तो उनके एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने के लिए वी अप्लाई पुली कंस्ट्रेंट. क्या है पुली कंस्ट्रेंट? बेटा नीचे की तरफ फोर्स तो किसी का दिखाया ही नहीं. इसका मतलब एक्सेलरेशन सर. अगर ये नीचे जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा होगा, दोनों साथ में नीचे कैसे जाएंगे? अगर आप इसको नीचे कर रहे हो तो इसको ऊपर कर लो, वो तो उनके मासेस पे डिपेंड करता है, मैंने तो रैंडमली ले लिया. आउट ऑफ ए एंड बी वी डोंट नो, जब तक हमारे पास वैल्यू नहीं है मासेस नहीं है, ठीक है, हमने किसी एक को ऊपर लिया दूसरे को नीचे ले लिया, उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना लेंगे. अब प्रैक्टिकली अगर बोल रहे हो तो ऐसे ही होगा कि ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, ऐसा होगा. मोस्ट लाइकली दैट विल बी द केस. बी इज गोइंग डाउन, ए इज गोइंग अप. क्यों? क्योंकि ए पे ऊपर की तरफ 2t लग रहा होगा, इसमें ऊपर की साइड फोर्स ज्यादा है, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द वेट. ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है. ओके, हाँ मैंने क्या पूछा था? पुली कंस्ट्रेंट. यस, व्हाट इज द पुली कंस्ट्रेंट? एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए ढंग से समझना. जब भी किसी भी सिस्टम में बहुत सारी पुलीज हो, जैसे यहाँ पे तो केवल दो ही है, सपोज 5, 10, 15 कितने भी पुलीज हो, हम उसमें रिलेशन निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में. कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्सेप्ट की जब भी किसी भी ब्लॉक को स्ट्रिंग से अटैच करते हैं उसके ऊपर टेंशन कभी वर्क नहीं करता. टेंशन और एक्सेलरेशन के डॉट प्रोडक्ट का समेशन 0 होता है. दिस इज द मैथमेटिकल मेथड. और बहुत सारे सारे 3-4 मेथड है, सारे समझेंगे. पुली कंस्ट्रेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है दैट डज नॉट डू एनी वर्क. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन बाय अ फोर्स. नाइन्थ में पढ़ा था, नाइन्थ में. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है? तो यूनिट समय याद किया, चलो ठीक है. तो यहाँ पे अगर ये t है और ये ऊपर जा रहा है x2 से और ये x1 से जा रहा है, लेट्स से x1 एंड x2 आर दियर डिस्प्लेसमेंट्स. हम पुली कंस्ट्रेंट समझ रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज पुली, व्हाट इज कंस्ट्रेंट? बाय द वे कंस्ट्रेंट का मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोशन. काट दोगे इनकी रस्सी, दोनों g से नीचे गिर जाएंगे. अभी ये आपस में कनेक्टेड है, सो दैट मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड. और उसका क्या रिलेशन है उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट. फाइंडिंग द पुली कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट. दोनों अगर एक साथ एक ही रस्सी से लगे होते हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट. इन दिस केस दे आर नॉट कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग. तो इसमें लॉजिक ये होता है कि जब भी दो या अलग कितनी सारी पुली हो, हमें सब पे टेंशन ड्रॉ करनी है. इधर टेंशन T. एक आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होती है. ये रेड कलर वाली स्ट्रिंग पूरी सेम ही है हर साइड में, सो दिस विल बी द टेंशन. राइट? तो समझ गया ना?
इन एन आइडियल स्ट्रिंग टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम, इसलिए इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन टी। टेंशन कहाँ लगता है? जहाँ पे वो खींच रहा हो, इधर बी को ऊपर, ऊपर वाले पुली को नीचे, इसको नीचे, इसको ऊपर, ऊपर नीचे। ऑल द पुलीज आर आइडियल। आइडियल पुली में फोर्स कितना होता है? नेट फोर्स। अंशिका, व्हाट इज द नेट फोर्स इन आइडियल पुली? 0. So on this pulley, what is the force in upward direction? 2t. नीचे कितना? 2t. ऊपर 2t लग रहा है तो नीचे भी 2t लगेगा। अब ये एक छोटी सी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में भी दोनों एंड पे टेंशन सेम होगा। अगर पुली को नीचे से 2t लग रहा है तो नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ 2t लगेगा। ये समझ आए? यहाँ फिर से इस पुली को ऊपर खींचा 2t से, इसलिए नीचे की तरफ फोर्स 2t होना चाहिए। एंड इन दिस स्ट्रिंग आल्सो टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। ऊपर की पुली पे 2t, नीचे के ब्लॉक पे 2t, और इसके अलावा फिर हम फोर्सेस M1G एंड M2G अभी आते हैं उस पे। पहला स्टेप होता है ड्रॉ द टेंशन इन ऑल दी स्ट्रिंग्स, ऑल दी ब्लॉक्स। ड्रॉ टेंशन, बाकी सबको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। द फोर्सेस ऑन दी ब्लॉक्स और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0, क्योंकि वो वहां पे लग रहा है, किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग पे। कभी भी स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, यानी अगर एक तरफ से टेंशन ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ से नीचे जा रहा होगा, वन साइड पॉजिटिव वर्क, अदर साइड नेगेटिव वर्क, टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज 0। ये लॉजिक है पुली कंस्ट्रेंट। यही प्रूफ है। हाँ, प्रूफ बोलो लॉजिक बोलो, एक ही बात है यार। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, उसका समेशन। टेंशन और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का समेशन 0। इन अ सिस्टम ऑफ आइडियल पुली, आइडियल मासेस, जितने भी मासेस हैं उनके ऊपर लगने वाले टेंशन और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट का समेशन 0 होगा ऑलवेज। सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टी डॉट ए 0। ओके, राइट। अब ये जो ब्लॉक ए है, इसमें टेंशन कितना लग रहा है ऊपर? 2t। एक्सीलरेशन कितना है? a1। वो भी नीचे, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। बी पे दो ही तो ब्लॉक है, बी पे टेंशन ऊपर t, एक्सीलरेशन भी ऊपर a2। इसका प्रोडक्ट करोगे सेम डायरेक्शन में तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू 0। माइनस 2t a1 क्यों? ये 2t ऊपर था, a1 नीचे है। कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलता है टेंशन और एक्सेलेरेशन की जितने भी मासेस हैं उन सब पे प्रोडक्ट निकालो और सबका समेशन, मतलब समेशन सम ऑल सच टर्म्स, और वो 0 आना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन में आ गया माइनस 2t a1 प्लस t a2 इज इक्वल टू 0। t गॉन, a2 इज 2 टाइम्स a1, यानी यहाँ पर 2 का एक्सेलेरेशन 1 के एक्सेलेरेशन का डबल होगा। ये रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा बाय कंस्ट्रेंट। जो ऊपर ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है पुली हम कंस्ट्रेंट कैसे लिखते हैं। पुली कंस्ट्रेंट मतलब जब पुली के ऊपर से ब्लॉक्स हो, कई सारे हो, कई सारी पुली हो, तो उनमें ब्लॉक्स का मूवमेंट ऐसे होता है कि सम ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इज 0, हैज टू बी 0। ये क्वेश्चन नहीं है, ये हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, जितने भी केसेस है उसमें पुली कहीं ना कहीं फिक्स थी, तो एक ही पुली है, इधर जितना इतना ही जाएगा उतना इधर ही नीचे जाएगा। Now there are multiple pulleys, multiple blocks, multiple strings. उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, पहले हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में? एक्सेलरेशंस के बीच में। एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन नहीं, 2t किधर है? अब a1 किधर है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? a डॉट b इज स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। वक्त में कुछ पढ़ाया था मैंने।
ऑनलाइन था, एक्सक्यूज इज दैट इट वाज ऑनलाइन। A dot B is AB cos theta, theta 180 हो गया तो cos 180 is -1। अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता था डॉट प्रोडक्ट, सेम डायरेक्शन में cos 0 is 1। ये तीनों रिलेशन इसी लॉजिक पे बेस्ड है कि टेंशन लग तो रहा है वर्क करेगा बट कभी करता नहीं, क्योंकि अगर एक तरफ से ब्लॉक ऊपर जा रहा है पॉजिटिव वर्क, सम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम द अदर ब्लॉक हैज टू गो डाउन। एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, दोनों का मिला के वर्क डन 0। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ए और बी अगर इस तरह से कनेक्टेड है, दे आर नॉट कनेक्टेड बाय द सेम स्ट्रिंग, दो अलग स्ट्रिंग में। इसका रिलेशन कैसे निकाला? पहले टेंशन, सारे फोर्सेस। ए पे टेंशन लग रहा है 2t, एक्सटेंशन है a1, 2t into a1। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अपोजिट थे, अपोजिट थे इसलिए। प्लस टेंशन एक्सटेंशन का प्रोडक्ट b पे, टेंशन ऊपर एक्सटेंशन ऊपर, सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव 0। ओके हजम नहीं हुआ, समझ नहीं आया, पता नहीं। भाई ये फॉर्मूला है, अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर दिस सिस्टम। जो हमने एग्जांपल, ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई दिस इक्वेशन या फॉर्मूला। कितने ब्लॉक है? उन दोनों पे टेंशन और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है उसका समेशन 0 होना चाहिए। ये पे टेंशन कितना है? सबको ऐड कर देना, सिग्मा मतलब समेशन। 2t ऊपर a नीचे, प्रोडक्ट हो गया 2t into a1, अपोजिट था इसलिए नेगेटिव, t ऊपर a2 ऊपर, दोनों को ऐड कर दिया 0। ये पहला मेथड। अभी हम कंस्ट्रेंट के और मेथड समझते हैं। अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे ये सबसे इजी वाला है। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो और भी बहुत सारे मेथड होते हैं पुली से कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट को डिराइव करने। हम क्वेश्चन आगे फर्दर नहीं सॉल्व कर रहे, हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जब भी किसी भी सिस्टम में मूवेबल पुली होती है तो उसमें कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। पिछले वाले केसेस में क्या था, एक ही ब्लॉक है, एक ही रस्सी है, एक जितना नीचे जाएगा दूसरा उतना ऊपर जाएगा, दोनों के इक्वेशन सेम होंगे। बट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द डिफरेंट ब्लॉक पासिंग और डिफरेंट पुली, तो हमें उसको, उस रिलेशन को कैलकुलेट करना पड़ता है बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन और बाय यूजिंग सम अदर इक्वेशन। देयर आर मल्टीपल मेथड्स, जो भी आपको चमक जाए, जो आपको अच्छा लगे। ये पहला वाला सबसे इजी था भाई, ओके। इसमें हमें टेंशन ड्रॉ करना है, टेंशन को एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके समेशन करना। सेकेंड मेथड उसको बोलते हैं एवरेज, मेथड ऑफ एवरेज। किसके मेथड है ये? किसके मेथड पढ़ रहे हैं हम? किसका मेथड पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ एवरेज। काय का एवरेज? मेथड ऑफ व्हाट? फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन द ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर मल्टीपल पुलीज। जितने भी पुली है सिस्टम में, उनके ऊपर जो मासेस कनेक्टेड है, उनके एक्सेलरेशन का समेशन 0 होना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ज्यादा हो तो नहीं हो रहा ना? अभी दो ही पुली हैं, जस्ट 2 पुलीज ओनली। मेथड ऑफ एवरेज क्या बोलता है? अगर कोई पुली है, यानी पुली, इसके साथ स्ट्रिंग अटैच है, one end of string is going with acceleration a1, another end is going with an acceleration a2, then pulley goes with an acceleration of a1 plus a2 by 2. If the free ends of a string of pulley has acceleration a1 and a2 as shown, then acceleration of pulley is always average of the both ends.
नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब मैथमेटिकली है, मैथमेटिकल है। A1 एक एंड का, A2 दूसरे एंड का। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में। थोड़ा नया है, मुश्किल नहीं है, इसलिए दिमाग को खोल के बैठना, हैव ए ओपन माइंडेड अप्रोच। कुछ नया सीखने के लिए होना पड़ता है ऐसा। अब उस लेवल से काफी ऊपर आ चुके हो। व्हाट इज मोटर? एक्सप्लेन विद डायग्राम। मैक्सिमम 5 मार्कर क्वेश्चन 10th में यही होगा। On what principle it is based? Yes, ये वही पिछला वाला क्वेश्चन है। हमने इसका एक्सप्रेशन कुछ ले रखा था A1 शायद, है ना? ये A1 था और ये ऊपर की तरफ A2 था। A1 A2 में रिलेशन निकालना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एवरेज। जो मूवेबल पुली है उसी पे एवरेज लगा सकते हैं, ये तो फिक्स है। ओके, दिस मूवेबल पुली, इसके लेफ्ट क्या आया नहीं मेरे तक क्वेश्चन। समझ आया कैसे पता पड़ता है कौन सा मूवेबल है, शायद ये पूछ रहे थे ना। जिसकी ये एक्सेस फ्री है, अगर यहाँ पे कील ठोक दोगे जैसे यहाँ पे, तो फिक्स हो गया, इट कैन नॉट गो एनीवेयर। गुड, दोनों का एवरेज निकालना है, दोनों एंड का। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन लेफ्ट साइड? इधर की स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना होगा? ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये उखड़ के तो जाएगा नहीं कहीं, जाएगा कहीं नहीं, ये उखड़ के फिक्स रहेगा ना हमेशा। एक्सेलरेशन कितना हुआ? बिकॉज इट इज फिक्स्ड। ये स्ट्रिंग एक्सेलरेट करेगी तो ये भी एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा मतलब छत गिर गई नीचे। तो द अदर एंड इज फिक्स्ड। अब इधर आते हैं, ये ऊपर A2 से इसके साथ जो स्ट्रिंग, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। ये हम पिछले वाले का लॉजिक यूज कर लेते हैं। किसी भी एक सिंगल पुली में both the ends have acceleration same. If this is going up, उसी तरफ नीचे। Now apply the average. पुली के दोनों एंड का, इधर का 0 है, इधर का A2 है। What will be average of the two? ये वो होगा जो पुली का एक्सेलरेशन है, that will be equal to A1. पुली के दोनों तरफ के स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन, एक तरफ 0 एक तरफ A2, दोनों का एवरेज A1 के इक्वल आ गया। जो रिलेशन पहले निकाला था वो यहाँ पर भी आ गया, जो भी आपको अच्छा लगे। Which method looks more comfortable? You can use. हाँ बेटा, वो मेथड ये है, ये सेकंड फॉर्मूला है। किसी भी पुली के दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है, अगर एक का एक्सेलरेशन A1 है दूसरे का A2 है, तो पुली का एक्सेलरेशन होता है दोनों का एवरेज। यहाँ पे इस पुली के एक साइड कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फिक्स है, दूसरी तरफ का एक्सेलरेशन था A2, दोनों का एवरेज 0 + A2/2, इसके एक्सेलरेशन होगा पुली का, जितना पुली का उतना इस ब्लॉक का। सो वी गेट द एक्सेलरेशन ऑफ, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ A1 एंड A2। राइट, समझ आ रहा है? अब इसके बाद अगर हमें इसमें एक दो मेथड और है वैसे, एवरेज क्यों है? थर्ड मेथड समझ आ जाएगा। थर्ड मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें इसका प्रूफ है। थोड़े से दिव्य दृष्टि चाहिए इसके लिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन मतलब थोड़े, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? ये नीचे जा रहा है, सपोज हमने ब्लॉक को नीचे पुल किया x, फिर पुली कितना नीचे जाएगी? कितना x दिख रहा है ना, बस ऐसे ही। अगर हमने इस ब्लॉक को नीचे पुल किया x, तो ये पुली भी x नीचे आएगी। कॉमन सेंस।
अब अगर ये पुली नीचे आ गई x, तो इधर भी x की स्ट्रिंग चाहिए फिल करने के लिए, इधर भी x की स्ट्रिंग चाहिए फिल करने के लिए, राइट? What is the total length of a string that has to move up from this side to fill these two parts? 2x. 2x. If pulley goes down by x, the other end of the string has to go up by 2x. बस ये लिख लिया था ना पहले वाला, ये थर्ड मेथड है, लेकिन इसको देखने के लिए थोड़ी सी अच्छी आंखें चाहिए। लॉग इज पुल्ड x, पुली गोज डाउन बाय x, इसके लेफ्ट में भी x की स्ट्रिंग खाली हो गई, राइट में भी x की स्ट्रिंग चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट हैज टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू फिल दिस स्पेस इज 2x। इसका मतलब अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलेरेशन a से, तो दूसरा वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा 2a से। Which means जब हमने पीछे लिया था a1 is a, a2 should be 2a। समझे? ये x है, ये 2x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसकी वेलोसिटी ये v नीचे से जा रहा है, ये 2v से ऊपर जा रहा होगा। अगर ये a से नीचे एक्सलेट हो रहा होगा, तो ये 2a से ऊपर एक्सलेट हो रहा होगा। रिलेशन सेम ही आएगा, चाहे कोई मेथड लगाओ, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छा लेकिन पहला वाला मेथड था, जिसमें दिमाग नहीं, उसमें पेन चलाना है, t इंटू ए का समेशन करके इक्वल टू 0। बाकियों में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लास्ट वाला नहीं समझे, लेकिन हर जगह नहीं कर पाओगे ना इसको। हाँ, अगर 2-4 पुलिस जाएंगे तो नहीं कर पाओगे ऑब्जर्व। पहला वाला मेथड हर जगह काम कर जाता है। अब हमने एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकाल लिया, उसके बाद क्या करना होता है? ड्रॉ द फोर्सेस, राइट इक्वेशन एंड सॉल्व। ये समझ आ रहा है बेटा? ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको? ये कुछ हम नया तो पढ़ रहे हैं शायद, अगर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा पढ़ना, रिवाइज करना। यस, कुछ पूछ रहा था शायद, डाउट? डाउट? गोविंद? ओके, Yes, sir. I'm here, sir. तो यू आर हियर, क्योंकि पहले नहीं थे शायद आप। हाँ, ओके। You are the 9th participant actually. ओके, बस हम थोड़ा सा ही करेंगे, डोंट वरी, ज्यादा एक साथ में ओवरलोड नहीं देना। पुली के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा ध्यान से एफबीडी बना के, पुली में पुली कंस्ट्रेंट होता है। पुली कंस्ट्रेंट का मतलब पुली के ऊपर से जो भी रस्सी पास हो रही है उनसे जो मासेस कनेक्टेड है, हाउ टू फाइंड द रिलेशन। अब क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए हमने रिलेशन निकाल लिया, ये देखिए पहला स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड रिलेशन, सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ द फोर्सेस एंड राइट इक्वेशन। दिस वाज m1 m2, बताइए m1, और ये हमें मिल गया कि अगर इसका एक्सलेशन a नीचे की तरफ है तो इसका ऊपर की तरफ 2a होगा, विद द हेल्प ऑफ थर्ड मेथड, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, किसी भी मेथड से। ये m1 जी नीचे, ये m2 जी नीचे, टेंशन T T T T T T 2T 2T। पहला स्टेप हेडेक, हेडेक होने लगा क्या? यस, बोलो, फिर से रिपीट करो, समझ आ गया? दिस इज गोइंग डाउन। इसकी इक्वेशन क्या होगी मिस्टर ऋषि? ब्लॉक ए की इक्वेशन। तुम डरो मत यार, तुम डर गए, ये खतरनाक सी चीज नहीं है, थोड़ी सी नई है एप्लीकेशन, और कहीं कुछ
दर्द होना चाहिए दिमाग में। When used first time। एक इक्वेशन क्या होगी, नीचे जा रहा है, क्या होगी इक्वेशन इसकी? टी नहीं है, ठीक से देखो यहाँ कितना है, 2t इज इक्वल टू m1। इक्वेशन फॉर बी, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 ए नहीं है भाई वो, अब 2a। हाँ, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2t है, इधर t है। इक्वेशन नंबर 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। हाँ, सॉल्व करना है, उसके बाद मतलब प्रोसेस वही है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। सॉल्व जैसे भी कर लो आप, यू कैन यूज एनी मेथड। टू वेरिएबल टू इक्वेशन, दो वेरिएबल कौन से, टेंशन और एक्सेलरेशन, टू अननोन्स टू इक्वेशन, सॉल्व टू फाइंड ए एंड देन पुट टी। और बहुत सारे आगे है मतलब है, बट हम अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी पे बेस 2-4 क्वेश्चन करेंगे। पहले इक्वेशन थी m2g, मैंने से सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, सो दैट बिकम 2t माइनस 2m2g इज इक्वल टू 4 टाइम्स m2a। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में ऐड कर रहा है। लेफ्ट साइड आ गया m2g माइनस m1g, m1g minus 2m2g is equal to m1 plus 4m2a। a is equal to m1 minus 2m2 divided by m1 plus 4m2 into g। This is the acceleration। ये एक्सेलरेशन है a का नीचे की तरफ, और इसका डबल होगा एक्सेलरेशन b का ऊपर की। पहला स्टेप एक्सेलरेशन रिलेशन निकाल के, सेकेंड स्टेप ड्रॉ दी FBD, थर्ड स्टेप इज सॉल्व द टू इक्वेशन। Yeah. Ayush? Okay. Hopefully. एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना ही डिफिकल्ट स्टेप था, उसके बाद तो सिंपल है। फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कनेक्टेड टुगेदर वाज लिटिल चैलेंजिंग। उसके लिए 2-3 अलग-अलग मेथड हमने कर लिए, आपको जो भी सबसे अच्छा लगता हो वो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये अभी तक हम 2 ही पुलियर रखते हैं, और जो अलग हायर क्वेश्चन है वी विल डू इट सेपरेटली फॉर जी। थोड़े इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन। इसमें ए जो है वो किसका एक्सलेशन था, ओनली फॉर m1। m2 का एक्सलेशन इसका डबल होगा ऊपर की तरफ, बिकॉज दैट वाज 2a। 1 or 2 लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो एक प्लेटफॉर्म पर हम खड़े, एंड वी हैव टू लिफ्ट दैट प्लेटफॉर्म। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट जो आर्किमिडीज ने बोला था, मुझे खड़े होने की जगह देखो मैं अर्थ उठा के दिखा दूंगा। काइंड ऑफ सपोज 100 kg का एक प्लेटफॉर्म है और आप भी इस पे खड़े हो। So if the mass of man is 50 kg
Mass of platform is 100 kg. Find the force that the person has to apply on the string to lift the platform with acceleration of 2 meter per second. अभी उसी पे खड़ा है. Find force man has to apply. तो पहले इतना ही कैलकुलेट कर लो कि वो गिरने से, so that platform does not fall. Platform remains at rest. मतलब प्लेटफॉर्म नहीं गिरेगा तो वो भी नहीं गिरेगा. कितना फोर्स लगाने पे वो नहीं गिरेगा. What is the force that man has to apply so that he does not fall? Platform does not fall. Yes. जितना फोर्स उसने लगाया होगा नीचे उतना ही टेंशन डेवलप होगा. उसने नीचे खींचा, रस्सी ने ऊपर खींच लिया. टी 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 टी. ये जो बीच में पुली थी, मोबाइल पुली है, ऊपर टूटी तो नीचे भी टूटी होगा. ये नीचे से भी अटैच है तो नीचे भी टूटी. अब प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ? What is the force applied on the platform and man? Yes. How much is the force applied on the platform and man? ऊपर की तरफ. नीचे तो m1 plus m2g दोनों का वेट लग रहा है. नीचे का फोर्स है m1 plus m2g. ऊपर कितना फोर्स है? ये प्लेटफॉर्म और ये मैन, ये दोनों एक साथ सिस्टम में. इधर टी आदमी के हाथ को ऊपर खींच रहा है. ये स्ट्रिंग 2t और ये टी. कितना हो गया? t plus 2t plus 2. What is the total upward force? 4t. Total downward force m1 plus m2g. 4 into t is equal to 150. G is 10. नीचे थोड़ी लग रहा है, ऊपर लग रहा है. टेंशन हमेशा खींचता है ना. टेंशन नीचे थोड़ी लगेगा. कौन सा टेंशन? टी 2t टी तो ऊपर लग रहा है उसको. तो ब्लॉक में दोनों देखे हो गए ना, दोनों साथ में स्टेशनरी है. इसका भी तो नहीं चल रहा. मैन प्लस प्लेटफॉर्म कंबाइंड मास 150 एंड दैट 150 kg इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर. ऐसे नंबर ऑफ पुली बढ़ाते जाओगे, फोर्स बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा. अभी इसमें कितनी पुली लगी है? 1 2 3. ऐसे नंबर ऑफ पुली बढ़ाते जाओगे. टोटल फोर्स हमने तो एक ही लगाया, पर्सन एक ही लगाया, रस्सी खींची बस. बिकॉज इट इज कनेक्टेड हियर, इसकी वजह से टूटी आ गया, इधर इनफिनिटी और आ गया. पर्सन अप्लाइड फोर्स थी, बट वो इस पुली के सारे यहाँ पे टूटी एक्स्ट्रा लग गया और इधर स्प्रिंग के सारे टी लग गया. और चाहिए तो यहाँ एक और पुली लगा दो, उसका टूटी आ जाएगा. एक और पुली लगा दो, उसका और टूटी आ जाएगा. एक और पुली लगा दो, उसका और टूटी आ जाएगा. ऐसे हम फोर्सेस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई पुली इज आल्सो कॉल्ड अ मशीन. Machine is something which reduces effort. मैंने लगाया 375 but total 1500 Newton. के बाद जो फोर्स होगा वो एक ही होगा. इसका 40 के बाद अगर सपोज रिजल्ट 3 है और उसमें 4 होते हैं तो 4 80 होगा 60 होगा. तो डिपेंड करता है हाउ इट इज कनेक्टेड. ऐसा कोई जनरल नहीं है. बोथ एंड फ्री, वन एंड फ्री इस पे डिपेंड करता है. ओके, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, कुछ आया. मैन एंड प्लेटफॉर्म दोनों को पकड़ के उसने रेस्ट पे रखना है. मैंने नीचे फोर्सफुल किया, उतना ही फोर्स पे टेंशन लगाया. ठीक, जितना आदमी जिसने स्ट्रिंग खींचते हैं उतना ही टेंशन आता है उसमें, अपोजिट. एंड बिकॉज ऑफ दैट ही फोर्स गेट्स मल्टीप्लाइड. ऊपर की तरफ टोटल फोर्स आ गया 40, नीचे की तरफ m1 plus m2. Next class, which is Friday, we will do some questions on this first and then friction start करेंगे.
ओके राइट, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.